So, hello, my dear friends. This is your friend C. Jatin Agarwal, and welcome to this Time to Salary series. Today, we are going to cover CV preparation tips. What I have done, basically, call it 2-3 CV sample formats, which you can use to prepare your CV in a professional way, right? So, of two CVs, one is where you can use the name of company, and second is the other one where you can't use the same, right? So that's link is the given in the description below. And one more thing that we have launched a WhatsApp channel also, which you can join, and its link is in the description below to get all the tips and as as soon as I update the same, right? So please join that to get all the materials related to that, right? So let's start this with the sample CV only. What I will do, I'll explain that what you need to follow while preparing a professional CV. So I'll explain that with a sample CV. So basically, a CV is divided into three parts. First is your educational background. Second is your experience, and third one is your extra curriculars or extra achievements, right? So the three things that is divided into. So let's see that what to write in a professional CV. So you have to prepare a professional CV in a way that it attacks your interviewer, and he'll be able to ask the questions from it. It will justify your work experience, it will justify your extracurriculars, right? So this is format one for you, in which like first, you need to mention your name. That sir, my name is Mr. Raju Bhai. I have to mention my name, then my qualifications, whether I have done any graduation also. I need to mention that. Then my mail ID is there, right? And then your phone number and your location. You will say what should be the location. It should be a present location, but it can be Mumbai or other metro cities. And if you want better shortlistings in other than campus, because in campus you have to fill your present current address as well as your permanent address, so you have to fill them separately, but you can fill here any other metro cities so that you can get better calls, right? So, and this next one is your LinkedIn. You have to insert your LinkedIn here. How you can insert? Let's see that how you can insert the same. So you have to go here. This is my LinkedIn profile. Then you have to go here on this profile. Then you have to copy this URL, which is there. You have to copy this URL and then you can insert there. Not follow any other way, because it will not take you to the it will not take your interviewer to the correct profile, right? So if you want to insert the same, let's see that how we can insert here. Like you need to press Control plus K. What? Control plus K. Insert hyperlink. You have to paste this address here, and then you have to show whatever you want to show, right? So like I want to show this only, LinkedIn Jatin Agarwal. Then here's your link is ready, and then you have to press Control and click here. It will take you to that LinkedIn profile, right? So then your next step is your professional education qualification. Please make sure that you mention your professional education qualifications in the descending order, that the thing which you have done last, you have to mention that, and then reverse the order, right? Firstly, like I've cleared my CA final, so I mentioned that. Then my intermediate is there, then foundation, and then if you have done any actuaries or other professional course, then you can mention that. And then your BCom, if you have done that graduation or post graduation, you can mention that also. And then your class 12th and 10th. Right. So first you have to mention the examination which you have passed. Then second is your month or year in which you have passed. Third is your institution from which you passed, and fourth is your performance. So you can write this performance in two ways: first percentage form or denominator numerator form, right? Like I got a 464 by 800 in CA final, so I can write that also. And then your remarks should be like first times is itself advantage, you can mention that also. If you have got any exemptions or distinctions, you can mention that. If you have been awarded any award or a subject topper or something like that, then you can mention that. So this is your professional qualification box. Please make sure to prepare this
this box in a static manner, because the other things may change, but this will remain constant because you have achieved what you had to till now, right? So work experience next is your section of work experience, in which you have to start with the articleship firm name and then the tenure and tenure in which your articleship is going upon, right? Then what you need to mention is you have to present it in a box format. That firstly you have to mention the key areas which you have dealt into. Second is your related work exposure, and we have another form of CV, which is the format second, in which we'll insert another column which contains the key client name also. Now you have a question that whether to show the key client name or not. It depends on you, because some firms like KPMG restrict articles to show the client name, so you are not advised to do the same. But you have done a, if you have done a listed client or you want to show that particular client, then you can do the same, provided your firm or any other regulation does not restrict you. Then your question is, sir, ICAI Code of Ethics restrict on disclosing any client's confidential information. But my friend, that is applicable on chartered accountants whose name has been registered in the members. But till now, if your articleship is going on or you have not registered the same, that regulation is not applicable to you as far as I know, right? So you can disclose the same. It will create a positive impact if you want to disclose, right? So this is a box format in which firstly you need to mention the key areas which you have dealt into. So mention the key areas very appropriately. Choose the words which seems attractive to the interviewer. Like I have mentioned, first is a financial advisory and consulting. Second is your auditing and assurance. So please make sure to to make it in a manner that in the first or second point you cover your financial advisory or auditing assurance or like India's consultancy, so that will move you towards that you have the knowledge of basic knowledge which a chartered accountant is required, that is towards the financials, right? So move into this description portion. So please keep 5 points in mind while writing a description portion. Firstly, you should use your phrasal verbs in appropriate manner. Where you have headed the assignment, you should write headed. Where you have assisted, you are like junior article, you should write assisted. Where you have analyzed, you should write analyzed. So use of phrasal verbs properly. Second one, write the turnover of the company. It is like moved in 1,000 crores, 500 crores. Mention that also. Third, if your client is a listed entity, highlight that also. If you want to mention the name, you can mention. Then next is that you should mention the key work done by you, because if you will straight away mention that I have done the statutory audit, so what you have done in that, mention the particular areas which you have looked into. So this is fourth point, and fifth point is your key observations, because you have to give your interviewer an option or chance that he can ask from this CV to you. Because अगर आप कोई इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यूअर सपोज वांट्स टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू, अगर उसको कुछ मिल गया इंटरव्यू इस सीवी में से, तो वो उसमें से आपको क्वेश्चन कर लेगा कि अच्छा आपने ये आपने काम किया है, इसमें ये आपने ऑब्जर्वेशंस निकाली है, तो बताओ इसमें ऑब्जर्वेशंस कैसे निकाली, इसमें क्या क्या देखा, इस इंडेक्स में क्या क्या आपने चेक किया, ये सब पूछ सकता है वो। बट अगर आप उसको इस चीज का मौका नहीं दे रहे कि पर्टिकुलरली कि इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में आपने लिख दिया स्टैट्यूटरी ऑडिट ये, तो वो पूछने का मौका नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा, उसके पास जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मटेरियल है उससे वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा, राइट? तो आपके लिए बेटर है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाएं और कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख के जाएं सीवी में जिससे इंटरव्यू को हाईलाइट हो और वो आपसे पूछे इन पॉइंट्स में से। सो दैट विल बी अ बेस्ट ऑप्शन। तो ये 5 टिप्स आप याद रखोगे। पहली टिप है कि आप सबसे पहले तो ये अपनी हेडिंग्स प्रॉपर्ली चूज करोगे। उसके बाद दूसरा, अगर आप ये फ्रेजल वर्ब्स प्रॉपर्ली चूज करोगे, फिर आप ना टर्नओवर आपकी कंपनी का लिखोगे, लिस्टेड है तो वो भी हाईलाइट करके लिखोगे, और फिर आप ना जो उसमें पर्टिकुलर काम किया वो लिखोगे, और फिर उसके बाद में आप ये भी लिखेंगे कि उसमें आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाली, ताकि आपको आप मौका दे रहे हो इंटरव्यू को कि वो आपसे इस पॉइंट पे पूछे, क्योंकि अगर उसको सीवी पे कुछ नहीं मिलेगा तो जो उसके पास पॉइंट्स है उसमें से पूछेगा, तो दैट विल बी ए वर्स्ट सी, राइट? तो इसके लिए बेस्ट है कि आप उसको इसमें से पॉइंट्स दो। तो इसलिए सीवी को अच्छे से प्रिपेयर करना, इसमें ये जो आपका पोर्शन है आर्टिकलशिप वाला या वर्क एक्सपीरियंस वाला जिसको आप बोल सकते हो, उसको प्रॉपर्ली फिल करें। अब भी आप बोलेंगे कि सर वी हैव डन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑल्सो, सो व्हाट टू डू। पहले आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिखेंगे, वही अपन ऑर्डर फॉलो करेंगे, दैट इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर।
जो पहले करा वो पहले, जो पहले करा वो बाद में लिखेंगे, जो सबसे लेटेस्ट करा अपन ने वो सबसे पहले लिखेंगे, राइट। सबसे लेटेस्ट करा वो सबसे पहले लिखेंगे। तो आर्टिकलशिप का पहले लिखेंगे और उसके बाद आप आर्टिकलशिप फर्म, सॉरी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पहले लिखेंगे, फिर आप आर्टिकलशिप फर्म का लिखेंगे, राइट। तो इसके लिए आपको ये है कि साथ के साथ मैं कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स भी बनाया हूँ आपके लिए, जो सीवी में आप मेंशन कर सकते हैं। वो लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली आपको मेरे व्हाट्सएप जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो आप इसको जरूर से ज्वाइन कर लो। मैं इस पर शेयर करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो बॉक्सेस हैं इसमें लिखना क्या है आपको, तो आप हेल्प ले सकते हैं उससे बॉक्सेस में लिखने की। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ एक आपको। आपने मान लो कि आपने ऑडिट करी है कोई पर्टिकुलर क्लाइंट की, सपोज करो आपने क्लाइंट का नेम लिख दिया। अब क्लाइंट के नेम में आपने ऐसे लिख दिया कि मैंने ना, आई हैव डन द इंडेक्स कंसल्टेंट, आई हैव डन स्टैट्यूटरी ऑडिट और ऑफ दिस एंटिटी। अब फिर उसमें आप लिख रहे हो पॉइंट्स में, प्रिपेयर द इंडियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब ऑडिटर हो भैया, आप ऑडिटर ये काम थोड़ी करता है प्रिपेयर, फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करने का। दे कैन ओनली कंसल्ट और वट एवर यू से, दे कैन ओनली ऑडिट। क्योंकि क्लॉज 44 जो आपकी सेक्शन 44 कुछ है, जो आपके कंपनीज एक्ट में बताता है, वो आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कांट टेंडर सर्टेन सर्विसेज व्हिच, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व्हिच इज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कांट टेंडर सर्टेन सर्विसेज। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोहिबिटेड होना, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपने वर्ड्स को वाइजली चूज करना पड़ेगा, राइट। तो इस सब पे ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ पे आप असिस्ट कर रहे हो वहाँ असिस्टेड लिखना पड़ेगा, जहाँ पे प्रॉपर आपने असाइनमेंट को हेड किया था वहाँ वो लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक टिप्स देता हूँ कुछ, कि कैसे कैसे आप ये पॉइंट्स भर सकते हो। एक तो स्टैंडर्ड पॉइंट्स जो मैं आपको भेजूंगा, विच कंटेन्स मोर देन 100+ स्टैंडर्ड पॉइंट्स, प्रोफाइल वाइज भी आपको दे दूंगा वो, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको पर्टिकुलरली जो भी कंटेंट ये, जो भी मतलब चैट जीपीटी को आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है, एआई के टूल से आपको सीवी बनाना है। आप जैसे पर्टिकुलर एक जो आपने लिखा उसको चैट जीपीटी पे लिखोगे कि समराइज और यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे करके लिखोगे, तो फिर एक एक पॉइंट्स को आप लिखोगे, या फिर एक साथ भी लिख सकते हो, जिससे वो आपको बेस्ट प्रेजेंटेशन दे देगा। तो वो आप लिखो तो स्पेलिंग एरर आपकी हट जाएगी। तो ये सबसे लिए आपके बेस्ट ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है। तो ये आप फॉलो करो। उसके साथ साथ चलो, एक बार तो ये फॉलो करो, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको बोलता है, नेक्स्ट फॉर्मेट में जो है वो बोलता है कि आपको इसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस के बाद में क्या लिखना है। तो वर्क एक्सपीरियंस हो गया आपका डन। सबसे पहले आपको लिखना है कि हेडिंग्स लिखनी है, और हेडिंग्स के बाद में उसके डिस्क्रिप्शन लिखना है। अभी हेडिंग्स में क्या क्या लिखोगे आपको पता है। हेडिंग्स में आपको बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसल्टिंग हो गई, ऑडिटिंग एश्योरेंस हो गया, या फिर रिस्क एडवाइजरी कंसल्टिंग हो गई इंटरनल ऑडिट की जगह। ऐसा नहीं है आप कुछ भी लिख रहे हो, लिख दिया कि डायरेक्ट टैक्स, बस खत्म। ऐसा नहीं, डायरेक्ट टैक्स में लिखोगे आप कम, डायरेक्ट टैक्स कंप्लाइंस वर्क, या डायरेक्ट टैक्स एडवाइजरी, या लिटिगेशन। तीन टाइप के होते हैं ना डायरेक्ट टैक्स में वर्क। वैसे ही आप ना, ऐसे नहीं इंटरनल ऑडिट लिख दिया ओनली, इंटरनल ऑडिट नहीं लिखना। इंटरनल ऑडिट का दूसरा आप वर्ड यूज कर सकते हो, रिस्क एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग। थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है, एट्रैक्टिव भी लगता है, तो इस तरीके से आप लिखो इनको। या फिर आप ऑडिट पे लिख सकते हो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ऐसा नहीं स्टैट ऑडिट या टैक्स ऑडिट कुछ भी लिख दिया। तो ये अच्छे से इन वर्ड्स को यूज करो ताकि आपका सीवी बाकी लोगों से अलग दिखे और कुछ अच्छा लगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब चीजें आप यूज करो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो आप ध्यान रखना कि आप हेडिंग्स भी प्रॉपरली चूज करें, और जो इसके अंदर का कंटेंट है उसमें आप 5 चीजों का जो मैंने बताया वो ध्यान रखें। उसके बाद चलते हैं कि नेक्स्ट पोर्शन पे जो बताता है कि आईटी प्रोफिशिएंसी पे आपको बताना है कि भैया मैं आईटी में भी माहिर हूँ। आईटी मतलब जो भी टेक्निकल स्किल्स आप थोड़ा बहुत जानते हैं, एमएस ऑफिस का नॉलेज है, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, वो लिख दो। कोई सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर है उसकी नॉलेज है वो लिख दो, तो ये भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। फिर अपन नेक्स्ट जो पोर्शन है अपना फाइनल पोर्शन सीवी का, वो है एक्स्ट्रा करिकुलर या अचीवमेंट्स। अब आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी आपने अचीव किए हैं। तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स आपने जो भी अचीव किए हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब मैं, याद रखिए एक्स्ट्रा करिकुलर्स में क्या क्या लिखना है, या एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स में क्या क्या लिखना है। अब इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप स्ट्रेट अवे कुछ पॉइंट्स लिख दो कि वन दिस प्राइज इन दिस कंपटीशन ऐसा करके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप बॉक्सेस में प्रेजेंट करो कि, जैसे मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ कि कैसे आप बॉक्सेस में प्रेजेंट कर सकते हो। आप ये भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे ये देखिए एकेडमिक्स हो गया, सोशल हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स बना सकते हो। तो एक्स्ट्रा करिकुलर से भी कई कई बार काफी इम्पैक्ट पड़ जाता है। मान लो आपने कोई स्पोर्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट खेल रखा है, स्टेट खेल रखा है, तो कभी क्या होता है अगर इंटरव्यूअर भी उसमें इंटरेस्टेड होता है उसी गेम में, या फिर उसने भी वो कुछ चीज खेल रखी होती है, या फिर उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो आपसे पूछ लेता है और आपको ये बाकी लोगों से एज देता है। तो इसको भी आप इक्वल इंपॉर्टेंस दें।
आप देखेंगे तो कोई अच्छी फॉर्म्स होती है जहाँ पे आपका वर्क एक्सपोजर इतना अच्छा नहीं है, तो भी आपको है ना एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बेस पे एक एडवांटेज मिल जाता है। तो इसको भी अच्छे से प्रेजेंट करें, आप याद करें आपने क्या क्या कुछ अभी तक किया है, और उसको अच्छे से पॉइंट्स वाइज यहाँ पे मेंशन करें। राइट, तो ये तरीका है। अब जो मैं एक दूसरा आपको फॉर्मेट बता रहा था सेकंड वाला, वो ये वाला फॉर्मेट है। इसमें हम क्लाइंट नेम भी लिखते हैं कि असाइनमेंट लिख दिया, की क्लाइंट लिख दिया, और उसका परफॉर्मेंस एरियाज लिख दिया। तो इसमें जैसे आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ बनाया गया सीवी। आपने असाइनमेंट लिखा, उसके बाद क्लाइंट का नाम, जो लिस्टेड क्लाइंट है, टर्नओवर भी लिख सकते हो इसके ब्रैकेट में। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या काम किया, एनालाइज किया मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, क्योंकि ऑडिट था तो ऐसा नहीं प्रिपेयर किया। कंप्लायंस चेक की, इंड एस 2 से 115 से, जो भी एप्लीकेबल था। मैंने कैश फ्लो देखा और नोट टू अकाउंट्स रिपोर्टिंग अंडर कारो भी चेक करी, कारो एप्लीकेबल था तो ये भी पढ़ लेना कारो कब एप्लीकेबल है, आपको तो याद है बट रिवाइज कर लेना। फिर उसके बाद वाउचिंग करी, 505 से एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लिया। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, जिससे आपको आपको पता रहेगा कि इंटरव्यूअर को भी ऑप्शन दोगे, साथ साथ कुछ ऑब्जर्वेशंस भी डाल देना। जैसे इसमें थोड़ी कम है, फर्स्ट वाले में फॉर्मेट पे थी, तो ऑब्जर्वेशंस भी डाल देना ताकि एडवांटेज रहे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सीवी का फॉर्मेट है। इतना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, पर 5 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है बस जब आप ये फॉर्मेट बना रहे हो। और कुछ आपको टिप्स बता देता हूँ जो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो ये आपकी टिप्स हैं। अभी आप देखोगे कि कैसे कैसे टिप्स आपको यूज में लेनी है। तो सबसे पहले जैसे टेम्पलेट का सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया कि आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बेस पे बना लो। तो 2 टेम्पलेट है ये ना, अभी टेम्पलेट ये है। अब उसके बेस पे बस ये कंपनी टू कंपनी कैसे डिपेंड करता है, वो ऐसे डिपेंड करता है, कंपनी में प्रोफाइल्स होती है अलग अलग। अब मान लो आप इंटरनल ऑडिट के लिए बना रहे हो सीवी, तो इंटरनल ऑडिट को ज़्यादा वेटेज दोगी, मतलब मैक्सिमम पोर्शन उसका रखोगे और बाकी अदर का रखोगे। उससे क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल स्पेसिफिक आप बना सकते हो सीवी, कि आपको बोलते हो कि सर मेरे को तो इंटरनल ऑडिट में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग बना लो, उसको ऊपर रखो। और साथ साथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को या फिर इंडेक्स को इनको छोड़ना नहीं है, उनको भी सेकंड पोजीशन पे तो रखो एटलीस्ट, ये नहीं लास्ट में ले गए। फिर आप है ना, अगर एफपीएनडी के लिए बना रहे हो तो कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस करके टॉप पे रख लो। तो प्रोफाइल स्पेसिफिक बना सकते हो, टेम्पलेट आपके अपने अकॉर्डिंग है कि दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपको सीवी कितने पेज का बनाना है, 1 पेज का ही रखो। आप बोलोगे सर मैंने तो आर्टिकलशिप में बहुत सारा काम किया था, उससे मैटर नहीं करता। आप समझो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनने जो बहुत एक्सपीरियंस है, उनकी भी 1 पेजर सीवी बन जाता है, मैक्सिमम 2 पेजर बन जाता है। तो ये क्या होता है, एटीएस रीड करता है सीवी, तो एटीएस 1 पेजर को बेस्ट लिखता है। तो आप 1 पेजर सीवी रखो, अभी इतना कुछ करा भी नहीं आर्टिकलशिप में, तो 1 पेजर। दूसरा फॉन्ट साइज क्या रखो, 11-12 रखो फॉन्ट साइज, और फॉन्ट कौन सा, टाइम्स न्यू रोमन या कैम्ब्रिया रखो, बेस्ट है। और आपकी जो हेडिंग्स उनको कैपिटल लेटर्स में कर देना। देखो ये बेसिक चीजें हैं, ये इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हेडिंग पे आते हैं। हेडिंग में अगर आप देखोगे तो हेडिंग में वो ये कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, लोकेशन और लिंक्डइन रखना है। ठीक है, उसके बाद आप एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे आए, तो मैंने बता दिया किस तरीके से रखना है एजुकेशन भी, और आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कवर कर दी, साथ साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस में आर्टिकलशिप भी कवर कर दिया किस तरीके से बनाना है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बता दिया। अब मैं आपको बता रहा था हेडिंग्स कौन कौन सी रखनी है एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, तो वो आपकी है, पब्लिक स्पीकिंग रख सकते हो, अकेडमिक्स, टेक्निकल्स, कोर्सेज या सर्टिफिकेशन कोई आपने किए वो भी लिख सकते हो, और हॉबी, सोशल वर्क। तो ये 5 हेडिंग्स में आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी बना सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपने कितना एक्स्ट्रा करिकुलर्स अचीव किया है, आपके ऊपर है। तो आप ऐसे दिखा सकते हो हाईलाइट कर करके। और याद रखना कि जो आप हाईलाइट करने वाले पोर्शन उसको जरूर से बोल्ड करके आए, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है, आई कैची होना चाहिए वो, ताकि इंटरव्यू उससे पूछ सके आपसे। अब सीवी, कि आपकी जो फाइल का नाम रहेगा वो कैसे रहेगा, CV_योर नेम, CA जतिन अग्रवाल, ऐसा करके। अगर आपकी AIR आ गई, मान लो भगवान चाहे सबकी आ जाए AIR, मान लो आ गई, तो आपको क्या लिखना है, CV_AIR1_जतिन अग्रवाल। मेरी तो नहीं है AIR1, पर ठीक है आप लोग की तो आएगी, तो लिख देना। फिर उसके बाद कुछ अलग से बेस्ट टिप्स देता हूँ आपको। सबसे पहला तो कि चैट जीपीटी को यूज करो पॉइंट्स को समराइज करने में और डिस्क्रिप्शन बनाने में, बेस्ट है। मतलब आपका 2 घंटे का काम 10 मिनट में, 5 मिनट में हो जाएगा, तो आप ये काम करो, और बेस्ट भी आपकी एक्यूरेसी रहेगी। दूसरी चीज कि है ना, सीवी में इस तरीके से लिखो कि इंटरव्यूअर उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सके, वो पढ़े उस सीवी को, उसको लगे कि भाई बंदे ने काम किया है, मेरे को इससे पूछना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट करो। तीसरा, आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बनाना है सीवी के बेस पे। वो मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन, HR वाले क्या है, शुरू में आपको कॉल करेंगे, और वो चाहे क्वालिफाइड नहीं है, पढ़े लिखे कम होंगे, और शुरू में तो उनसे ही बात करनी पड़ेगी ना, तो उनको समझाना पड़ेगा कि मैं चार्टेड अकाउंटेंट बन गया अब। तो उनको बताना पड़ेगा कि वाई यू आर एलिजिबल फॉर और क्वालिफाइड और बेस्ट फॉर दिस जॉब, तो क्या क्या आपकी बेसिक है। तो उसके लिए एक शॉर्ट वीट आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, वो भी आपको बता दूंगा, 2-3 मिनट की, कुछ 2 मिनट की, 1 मिनट की प्रिपेयर करनी है। ठीक है,
और एक है ना कुछ यूनिक स्ट्रेंथ्स जो आपकी है, जो आपके बारे में पूरा कुछ बता सके, तो वो जरूर उसमें हाईलाइट करके आ जाओ, बेस्ट है, उस पर आप गेम खेल सकते हो पूरा। तो ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं सीवी प्रिपरेशन के लिए। बाकी अभी जैसे वीडियो में मैंने एक तो ये डाल दिया, सीवी प्रिपरेशन टिप्स डालिए, और क्या क्या आप आफ्टर दिस एग्जाम टिल और सीए फाइनल कर सकते हो वो बताएं। धीरे धीरे हम लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे और अलग अलग नौकरी पोर्टल पे और आईएम जॉब्स पे और फास्ट करियर्स पे, इन सब पे भी अपनी आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो बताएंगे। क्योंकि आप देखोगे तो अगर आपकी जैसे रैंक आ जाती है, तो रैंक्स में फास्ट करियर से सबसे बेस्ट वैकेंसी लेके आता है, एचयूएल की हो गई, वेदांता की हो गई, तो इन सब पे भी अपन पहले आईडी बना के रख लेंगे अपने पोर्टल्स पे, ठीक है। तो प्रोफाइल्स मतलब क्रिएट करके रख लेंगे, तो ये सब करना बताऊंगा। और साथ साथ बाकी और भी जो चीज़ें हैं, और आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो मेरे को बताना प्लीज़। लाइक जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि इट विल मोटिवेट मी टू मेक द फर्दर वीडियोस, राइट। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो टाइम भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच।